Good morning, everyone. So today we'll be doing the last flow control method, that is your selective repeat. Good And morning. good morning, good morning. And then we'll see the questions. कुछ कह रहा है? Good morning, ma'am. Good morning, good morning. Then we'll see the questions and उसके बाद फिर जो भी आपके we'll discuss कि next हम क्या करेंगे, ठीक है? So we have already completed this framing and everything. So so let's start with selective repeat protocol. Okay, so before starting with selective repeat protocol, what was the major drawback according to you of go back N? If we have go back N with us, and if anybody asks that what is the major drawback of go back N, why we have to introduce selective repeat, so what you will say? What will be the reason according to you? Yes. बताओ. गो बैक एन का मेजर ड्रॉबैक क्या होगा आप लोग के अकॉर्डिंग? आई एम आस्किंग इफ somebody ask you कि what was the major drawback of go back n, so what will you answer? What is the major drawback of go back n according to you? Ma'am, if one packet become corrupted, then I have to send the whole frame. Correct. Whole frame नहीं, whole window. मतलब कि if you have this window and your one packet is lost, so you have to send the entire window again. This was the major drawback of go back in. Okay, so what happened was, yes, correct. Okay, so go back NARQ simplifies the process at receiver side. What it does, it is basically कि receiver has to keep track of only one variable. That is, means receiver has only, what is the size of receiver window in go back N? One, ma'am. One, right? One is the size of receiver. Correct. So when receiver window is 1, this means that receiver does not have to do much work. He just have to see whether the frames are in order, and if they are not in order, so they are simply discarded. There is no buffer to keep the out of order frames. Okay? But what happens is when you have a noisy link, so there is a high probability that the frames will be damaged. Noisy link में तो आपका you know ना that noisy link में we studied the sliding window protocol. So this means that when you have high probability of damage, this means that more packets will be resent. This means that more and more multiple frames will be resent even when they are not damaged, because of one packet or two packets or three packets that are damaged, entire window दोबारा भेजनी पड़ेगी. So this resending uses up the bandwidth and slows down the transmission. For noisy links, there is another mechanism that does not resend n frames when just one frame is damaged. So what happens in selective repeat is only that particular frame is resent that is damaged, not the entire window is sent.
So this mechanism is called selective repeat ARQ, automatic repeat request. It is more efficient for noisy links, but the processing at the receiver is more complex. So what is the thing that we have to remember? That go back N basically has to retransmit the entire window. But at go back N, receiver's work is very less. Okay, means no work at all. But when you talk about selective repeat, so it basically helps in increasing the efficiency in using the bandwidth, but receiver works increases. So how will we'll see now. So first thing you have to remember in SR protocol, that is your selective repeat protocol, sender window size is always same as receiver window size. This means that if your sender window size is N, then your receiver window size will also be N. Both will always be equal in size. Okay? So what is the point you have to remember? That in selective repeat protocol, both windows, that is at the sender side and at the receiver side, will be of the same size. Definitely not one, because if suppose both are one, then how your protocol will behave? If both are one, how your protocol will behave? Like if both the windows are of size 1, then my protocol will behave like what protocol? Stop and wait. Huh? Stop and wait, ma'am. Correct. Stop and wait. So, and when we have sender size as 1 and receiver size as, sorry, sender size is N and receiver size is 1, then what it is? Go back and. Correct. Go back N. और जब यहाँ पे भी N है and यहाँ पे भी N है, this is your selective repeat. So this is an important point that you have to remember. ठीक है? Then अब we have studied this point कि sequence number field में if we have n bits, so 2 raised to power n sequence numbers are possible. So maximum number of frames that can be sent in one window is 2 raised to power n. Now I have sender window size and receiver window size, both are equal. So what it will be? It will be 2 raised to power n divided by 2. Why divide by 2? Because sender window size and receiver window size are both having the same sizes. So earlier we were only talking about what? Earlier we were only talking about your sender window size. So we were taking 2 raised to power n. But now we have, and it is the maximum frames that can be sent in one window. So now we have sender window size and receiver window size equal to 2 raised to power n divided by 2. That will be equal to 2 raised to power n minus 1. So whenever you have to find the size of window in your selective repeat protocol, you have to use this formula. That is 2 raised to power n minus 1. And n is the number of bits that are present in the sequence number field. Okay? ठीक है वाला point? Yes, ma'am. So basically, if you want to write, you can say that window of sender plus window of receiver will always be less than equal to 2 raised to power n. Why? Because maximum number of frames that can be sent in one window will always be equal to 2 raised to power n. So less than equal. So, and they both are of same size. So I can write it as twice window less than equal to 2 raised to power n. And this will give you the same thing, that is 2 raised to power n minus 1. So whenever you have to calculate the size of window in selective repeat protocol, always use the formula 2 raised to power n minus 1. Third point is that SR protocol uses independent acknowledgement only. Matlab कि in your go back N, we were mostly having cumulative acknowledgements, right? We were only looking for cumulative acknowledgements. But in case of SR protocol, we use independent acknowledgement. Okay? So now, next point is SR protocol does not accept the corrupted frames, okay, but it does not silently discard them. Matlab ki it will not accept the corrupted frames, but it will not also discard them. Like your go back N was simply discarding it silently. SR protocol will not do it. It will not accept the corrupted frames, but it will not also discard them. What it will do? If a receiver receives a frame, now you have to remember this point, that when we were talking about stop and wait,
So whenever stop and wait ARQ was having a corrupted frame, what it was doing? It was sending a negative acknowledgement, right? Yes, ma'am. Go back and was simply doing what? Go back and was discarding the corrupted frames. But what this SR protocol will do, if receiver receives a frame that is corrupted, it does not silently discard that frame. Receiver handles the situation efficiently by sending a negative acknowledgement. Same, okay? Negative acknowledgement allows early retransmission of the corrupted frame. It also avoids waiting for the timeout timer to expire at the sender side to retransmit the frame. So what happens is that नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जैसे ही रिसीवर ने सेंड किया, सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर आपका जैसे ही सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला, सपोज इफ द केस इज लाइक दिस, दैट दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर. नाउ सेंडर सेंड्स वन पैकेट दैट इज योर फ्रेम 0, सपोज, ठीक है, फ्रेम 0 इज सेंट एंड दिस फ्रेम इज करप्टेड. Okay, this frame is corrupted and this is the timeout timer of this frame. Okay, this is the timeout timer of this frame 0. Now what will happen is that suppose now receiver saw that this is a corrupted frame, it will immediately send what? It will immediately send a negative acknowledgement for frame 0. Okay, so what will happen is that now sender will not wait for the timeout timer. At this point of time, it will immediately send the frame 0 again. So this is what they are saying, that it also avoids waiting for the timeout timer to expire at the sender side to retransmit the frame. मतलब कि it does not wait for the time कि timeout timer expire होगा तब मैं भेजूंगा. It will simply retransmit the frame. Okay? Yes, ma'am. Then if you see this one here, this is sender, this is having 4 sequence numbers 0 1 2 3 and this is the receiver. So frame 0 send हुआ, frame 1 send हुआ. अब frame 0 send हो गया, frame 1 send हो गया, अब receiver ने भेज दिया acknowledgement 2. ठीक है, now acknowledgement 2 से मिला and suppose acknowledgement 2 is the frame 2 is lost. Now what will happen is frame 2 lost हो गया but frame 3 भी भेज दिया यहाँ से. Now what he will say is, he will say negative acknowledgement 2 means that send me the frame second. I have, अब उसने third to accept कर लिया but he is waiting for frame 2. So what he will send negative acknowledgement 2 and what will happen? This frame 2 will be reset. So if you try to see this, if I try to draw one figure, so suppose I have, this is the sender side and this is your receiver side. Now what is happening is, suppose that let me say that value of n is 3. Now if value of n is 3, what will be the window size? What is the formula? 2 raised to power n minus 1, right? So what it will be? It will be, window size will be 4. That is 2 raised to power 3 minus 1 is 2 raised to power 2. So 2 raised to power 2 will give you 4. Now the transmission will start. What will happen? Suppose this is the sender window that is having the frames as 0, 1, 2 and 3. And since n is equal to 3 means 3 bits are there. So 3 bits में how many sequence numbers are possible? 2 raised to power n. That is 8 sequence numbers are possible, right? Yes, ma'am. ठीक है, so ये आपकी 4 की तो आपकी window हो गई. 4 is the window and rest you have 8, that is 0 to 7 sequence numbers you have. So 3, 4, 5, 6 and 7 and up to so on. We'll start again from 0. Now this is the window. Now what will happen? Now your frame 0 is sent, then your frame 1 is sent, then your frame 2 is sent, and then your frame 3 is sent. Now what happened is 0 is lost, okay, and 2 is lost. Now what will happen is, now receiver will receive 1, receiver will receive 3. So what he will do, he will send an acknowledgement and he will say acknowledgement of 2. Means acknowledgement 2 means क्या receive हो गया है?
अगर एक्नॉलेजमेंट 2 भेज रहा है तो दिस मींस व्हिच फ्रेम इज एक्सपेक्टेड, व्हिच फ्रेम इज एक्सेप्टेड, 1. राइट, ठीक है. एक्नॉलेजमेंट 2 1. मींस दैट फ्रेम 1 is accepted by the receiver, and then he will send an acknowledgement 4. So when acknowledgement 4 is sent, this means which frame is accepted? Third frame. Frame Frame 3. So now since they are independent acknowledgements, this means that frame 1 and 3 are received and 0 and 2 are not received. So what will happen is, suppose this is the timeout timer. So what will happen now? अब negative acknowledgement तो भेजा नहीं, because frame is not corrupted, frame is lost. So what will happen? This timeout timer, suppose, is expired at this point of time. Now he got the acknowledgement 2 and 4. This means he need to send the acknowledgement timeout timer for 0 and 3. So he will do what? He will send the frame 0 again, and he will send frame 3 again. So now he will receive the acknowledgement, sorry, 2, not 3, 2. So now he will receive the acknowledgement again. For now he will send what? He will send acknowledgement 1 and he will send acknowledgement 3. Okay, and then your window will move forward. Clear? So this is basically the thing in your selective repeat protocol. Now यहाँ पे they are saying lost, but यहाँ पे lost नहीं होगा. Basically it is what it will be. It will be corrupted. Corrupted के case में वो भेजता है negative acknowledgement. ठीक है? It is not lost over here. ठीक है? Then next is SR protocol accepts out of order frames. Obviously अभी आपने figure देखी जहाँ पे आपका क्या था कि 0, 1, 2, 3 was sent, 0 was lost, 2 was lost, but 1 and 3 were not discarded. 1 and 3 were accepted. So means that out of order frames are accepted. Now how they are accepted in out of order frames? So SR protocol requires sorting at the receiver side. वही starting में क्या लिखा था? Go back N में receiver side is very simple, but in SR protocol at receiver side we apply sorting. ठीक है? Sorting is applied. So receiver window is implemented as a linked list. What will happen is, whenever this is your linked list, suppose, so whenever a frame is, whenever a new frame comes, so what will happen? It is added at the end of the linked list. If this is your linked list, not ठीक है, so यहाँ पे end पे this frame will be added. Suppose this was 1 over here and this was 3 over here. Now your next frames came, that is 0, and then it came your next frame, that is 2. So ऐसे आपके frames है. ठीक है? So now what will happen? Because of this linked list, all these out of order frames are accepted. So what will happen when receiver receives a new frame? Whenever a new frame is received, it places the new frame at the end of the linked list. ठीक है? So when the received frames are out of order, now ये सारे frames आ गए. Now sorting will be performed, and after sorting is performed, you will get the correct order of the frame. ठीक है? So remember this, that in SR protocol sorting is applied at the receiver side. ठीक है? याद रहेगा. So because of this sorting only out of order frames are accepted. ठीक है? ये point clear हो गया? Yes ma'am. Then next is sender के side पे apply होती है searching. Now why searching is applied? Suppose receiver does not reject out of order frames. Receiver accepts the out of order frames and sort them later. But now suppose suppose 0, 1 and 2, 3. Let's take the previous example only. 0 was lost and 2 was lost. 1 and 3 were sent. Now acknowledgement was sent that receiver says I need frame 0 and I need frame 2. So out of all the frames, what sender has to do? Sender has to search, because sender can send only those frames that are lost. पूरी window sender नहीं भेजता. So that is why searching is required at the sender side, because he has to search for that particular frame जो missing है, जो lost हो गया है, जो corrupt हो गया है, and he has to send that frame only. So that is why only the missing frame has to be sent by the sender. For sending the missing frame, sender performs searching and finds the missing frame. So then sender selectively repeats that frame. Thus only the selected frame is repeated and not the entire window, and that is why this protocol is known as selective repeat protocol. अब समझ में आ गई चीज? So आपके सेंडर के साइड पे सर्चिंग लगती है एंड रिसीवर्स के साइड पे क्या लगती है?
रिसीवर्स के एंड पे क्या लगती है? sorting, सॉर्टिंग, ठीक है, ये चीज याद रखना। मे बी दे कैन आस्क यू इन ट्रू और फॉल्स या कुछ भी करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट में, ठीक है। एंड व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज n अपॉन 1 प्लस 2। एफिशिएंसी मैंने आपको पहले भी बताया था, विंडो साइज अपॉन 1 प्लस 2a होता है। एंड यहाँ पे विंडो साइज कितना है? विंडो साइज इज n, सो इट इज विंडो साइज अपॉन 1 प्लस 2a, दैट इज विंडो साइज n, सो 1 n अपॉन 1 प्लस 2a, ठीक है। ये आपका बेसिकली सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल है। दिस इज नथिंग, मतलब ज्यादा इसमें कुछ इतना वो नहीं है, बट इसके न्यूमेरिकल्स अभी हम करेंगे, सो वो थोड़े से अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई जस्ट वांट टू ड्रॉ कंपैरिजन टेबल फॉर यू, जिससे कि आपको इजी रहेगा याद करने में। So we have 3 protocols. One is your stop and wait, and this is stop and wait ARQ, ठीक है। ARQ की बात हो रही है, we are not talking about the normal stop and wait. This is your first protocol. Then we have go back n, and then we have selective repeat. So first thing that we are talking is in terms of efficiency. What is the formula of efficiency for stop and wait? Yes, 1 plus 2a, ma'am. correct. 1 upon 1 plus 2a. What is the formula for go back n? लिपिका बताएगी। लिपिका, Yes, ma'am. formula for go back n, efficiency formula। 1 plus 2a. सोच के बताओ। मैंने यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, विंडो साइज अपॉन 1 प्लस 2a है। विंडो साइज क्या होती है गो बैक एन में? कोई और बताओ। सरिता आप बताओ, पूनम आप बताओ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है गो बैक एन में? विंडो साइज क्या बताई थी? एन ही तो होती है विंडो साइज। Yes, ma'am. Upon 1 plus 2a. एन अपॉन 1 प्लस 2a, एंड सिलेक्टिव रिपीट में भी एन अपॉन 1 प्लस 2a. 2a. This is the efficiency formula for both all the 3 protocols. Then buffers. Now basically buffers are what? Buffers are required for the windows. For the windows we require buffers. So in stop and wait, how many buffers are there? 1 One is for your sender side for receiver, ma'am. and one for Receiver. receiver. So how many buffers are there in total? No. 2 buffers are there in your stop and wait ARQ. Then what about go back n? 2 buffers. सोच के बोलो, go back n में कितने buffers की जरूरत पड़ेगी? Sender n, ma'am. Sender n हो गया plus Receiver 1. receiver 1. So n plus 1 buffers are required for go back n. And selective repeat में? N plus n, ma'am. 2n. Correct. n plus n. ठीक है, clear हुआ सबको? Okay. Yes. Then let's talk about sequence numbers. So if we have sequence numbers, so sequence numbers कितने होते हैं stop and wait में? 2, ma'am. 2, 0 and 1. 1. और आपके go back end में कितने sequence numbers कल हमने पढ़े थे? 1. हाँ, कल हमने 2 एग्जाम्पल में आपको 2 केस बताए थे। एक केस में हमने n सीक्वेंस नंबर्स लिए थे जिसमें हमारा डुप्लीकेट पैकेज को प्रॉब्लम आ रही थी। एक हमने लिया था n+1 का केस, याद आया? ये वाली चीज याद आई कि हम एक एक्स्ट्रा सीक्वेंस नंबर लेते हैं n+1। अगर हम n लेंगे तो हमारी जो एक्नॉलेजमेंट है वो
डिस्कार्ड हो जाएगा, सेकंड सेट की तरह नहीं लेगा। नहीं याद आया? यस मैम, रिवाइज किया है आप लोगों ने? यस मैम, यस सो गो बैक एन में कितने हो गए सीक्वेंस नंबर्स? n प्लस वन, 1। और सिलेक्टिव रिपीट में कितने हो गए सीक्वेंस नंबर्स? n प्लस n। ठीक है, यस मैम, देन हाँ, नाउ अगर आपको रिट्रांसमिशन करना है, रिट्रांसमिशन मींस दैट इफ योर पैकेट इज लॉस्ट एंड यू नीड टू रिट्रांसमिट, सो स्टॉप एंड वेट में कितने पैकेट्स रिट्रांसमिट होते हैं? अगर मान लो आपका पैकेट एक लॉस्ट हो जाए, सो स्टॉप एंड वेट के केस में ओनली वन पैकेट इज रिट्रांसमिट। ट्रांसमिटेड, ठीक है, गो बैक एन के केस में कितने पैकेट्स रिट्रांसमिट होते हैं? विंडो One साइज, window. Window size. एंटायर विंडो, One window. एंटायर विंडो, राइट? तो विंडो का साइज क्या है? एन, n। एंड सिलेक्टिव रिपीट में कितने Only पैकेट रिट्रांसमिट होंगे? ओनली करप्टेड, सिर्फ जो पैकेट लॉस्ट हुआ है सिर्फ वही रिट्रांसमिट होगा, पूरी विंडो रिट्रांसमिट नहीं होती है। ठीक है, देन वी हैव बैंडविड्थ। लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ। स्टॉप एंड वेट में बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन आपका कैसा होता है? स्टॉप एंड वेट में बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होता है लो। गो बैक एन में बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होता है हाई। व्हाई हाई क्यों होता है? बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल फ्रेम्स को रिट्रांसमिट करना पड़ता है। एंड सिलेक्टिव रिपीट में बैंडविड्थ जो होती है वो होती है मॉडरेट। ठीक है, यस मैम, एंड अच्छा बताओ, इन सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अगर मुझे कोई इम्प्लीमेंट करना है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन किसकी होगी? गो बैक एन की मैम, सेलेक्टिव रिपीट Go की। back in. क्योंकि सेलेक्टिव रिपीट की, क्योंकि इसमें आपको सर्चिंग सॉर्टिंग दोनों इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्टिव रिपीट हुआ। गो बैक एंड मॉडरेट है एज कंपेयर टू स्टॉप एंड वेट एंड सिलेक्टिव रिपीट, बट कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्टिव रिपीट ही होगा बिकॉज इसमें आपको सर्चिंग सॉर्टिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट मी जस्ट आस्क अ क्वेश्चन। ओके, so you have a question that is कि विंडो साइज जो है आपका, विंडो साइज को WH देखते हैं, ठीक है, वो 3 है। ठीक है, 10 पैकेट्स आर सेंड, सेम वही क्वेश्चन है रिट्रांसमिशन वाला। 10 पैकेट्स आर सेंड, every 5th packet is lost. So in your selective repeat protocol, so how many retransmissions are there? How many total transmissions will be there? Number of total transmissions in your selective repeat protocol. ओके, पूनम का आंसर आ गया है, बाकी सी लुक हियर एवरीवन, अगर थोड़ा किसी को डाउट आ रहा है तो, बिकॉज अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। सो दे आर सेइंग दैट योर every 5th पैकेट इज लॉस्ट। टोटल ट्रांसमिशन देखो लिपिका, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर विंडो साइज 3 है और 10 पैकेट्स आप भेज रहे हो,
ठीक है, सो एटलीस्ट 10 पैकेट्स तो आप भेजोगे ही. सी व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि आपकी विंडो साइज है 3 की एंड एवरी फिफ्थ पैकेट इज लॉस्ट. सो नाउ इफ आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, सो विंडो साइज है मेरी फर्स्ट ये 3 की. बेसिकली सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल में क्या होगा आपको पता है कि फिफ्थ पैकेट है आपका ये. ठीक है, फॉर नाउ. सो मीन्स कि आपकी ये विंडो साइज है 3 की. सो नाउ 1 2 एंड 3 फ्रेम सेंड हो गए. अब आपकी विंडो साइज हो गई क्या, अब आपकी विंडो साइज हो गई 2 3 एंड 4 की. फिर आपने ये भी सेंड कर लिया. फिर आपका हियर 3 4 5 का, फिर 4 5 6 का, फिर 5 6 7 का. अब जब 5 6 7 की आपकी बारी आई, then you will realize that fifth packet is lost. So what will happen is that कि इस पूरी विंडो में, ये जो पूरी विंडो है आपकी, इसमें आपका सिर्फ एक पैकेट लॉस्ट हुआ है 5. ठीक है, 6 7 आपका लॉस्ट नहीं हुआ है. So what will happen is 5 आपका दोबारा से रीट्रांसमिट होगा. बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपका इस विंडो में द मेजर डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपका 5 रीट्रांसमिट फिर से होगा. देन 1 2 3 4 5. अब आपका कौन सा पैकेट है जो लॉस्ट होगा? दैट इज अगेन योर फिफ्थ पैकेट, दैट इज योर पैकेट नंबर 9. ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने दोबारा से आपकी विंडो ऐसी आई. 6 7 5 आपने सेंड किया, 7 5 8 आपने सेंड किया, 5 8 9 आपने सेंड किया, 8 9 10 आपने सेंड किया. फिर जैसे ही आप 9 10 पे आए, यू विल रियलाइज दैट 9 इज ऑल्सो लॉस्ट. सो आपने 9 और 10 दोनों सेंड कर दिए, बट अब दोबारा से रीट्रांसमिट कौन सा हुआ? सिर्फ और सिर्फ पैकेट 9. सो टोटल आपके 12 ट्रांसमिशंस होंगे. क्लियर हुई चीज? Yes, ma'am. गो बैक एंड में आपकी पूरी विंडो ट्रांसमिट होती थी, बट यहाँ पे अगेन सेम प्रोसेस है, पूरी विंडो का सेम प्रोसेस है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट only that packet that is lost is only retransmitted, not the entire window. ठीक है लिपिका, क्लियर हुआ ये वाली बात? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट कि अब आपका जो विंडो साइज है वो सेम है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज सेम, दैट विंडो साइज इज 3 only. 10 packets are sent and every fourth packet is lost, not sixth, fourth. Try do it. Fourth packet is lost. Then how many transmissions will be there? Okay. ओके, एंड लिपिका आपका आंसर क्या आ रहा है? बेसिकली इसमें आपको क्या करना है ना, सिलेक्टिव रिपीट वाले क्वेश्चन में आपको विंडो की जरूरत भी नहीं है. आप बिना विंडो के भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. कैसे? हाउ कैन यू डू इट? आप ऐसे करो, आप सारे ट्रांसमिशन दोबारा लिखो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको दोबारा सेंड कहाँ से करना है, कौन सा करना है. ठीक है, अब आपकी क्या है, विंडो साइज 3 ही है. सो ये 3 रही है आपकी. आपको पता है कि फोर्थ पैकेट आपका ये है फॉर नाउ. सो अब आपका क्या हुआ, ये आपने दोबारा, ये आपने आपकी विंडो हुई, फिर ये आपकी विंडो हुई, फिर ये आपकी विंडो हुई. ठीक है, फिर इसके बाद आपकी विंडो 4 5 6 हुई. सो यहाँ पे आप दोबारा से क्या करोगे, यू विल रीट्रांसमिट 4 अगेन. आपकी फोर्थ पैकेट कौन सा हो? 1 2 3 4. आपका फोर्थ पैकेट हुआ ये वाला. ठीक है, फिर आपकी विंडो हुई 5 6 4 की,
फिर आपकी विंडो हुई 647 की, फिर आपकी विंडो हुई 478 की, फिर आपकी विंडो हुई 789 की। जैसे आपकी विंडो 789 की हुई, दिस मींस नाउ अगेन यू हैव टू रीट्रांसमिट 7। तो आपका कौन सा फोर्थ पैकेट हुआ? 1 2 3 4, 10th पैकेट आपका फोर्थ पैकेट हुआ। फिर आपकी विंडो हुई 879 की, फिर आपकी विंडो हुई 9710 की, फिर 710 की, और जैसे आप 10 पे आए यू हैव टू रीट्रांसमिट दिस अगेन। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। So टोटल आपके 13 रीट्रांसमिशंस हो जाएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। सो दिस इज हाउ आप ये वाला क्वेश्चन अगर आपके रीट्रांसमिट के आते हैं तो आप ऐसे करोगे। अब आपके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताओ कि कैसे करोगे। सो द क्वेश्चन इज बेसिकली they are saying that 5-bit sequence numbers is used. मीन्स कि आपकी जो सीक्वेंस नंबर फील्ड है वो 5 बिट यूज कर रही है। सो यू हैव टू टेल कि सेंडर विंडो साइज क्या होगा और रिसीवर विंडो साइज क्या होगा इन केस ऑफ फर्स्ट गो बैक and in case of selective repeat. So go back n में सेंटर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज क्या होगा, और सिलेक्टिव रिपीट में सेंटर विंडो साइज रिसीवर विंडो साइज क्या होगा। पहले गो बैक n का बताओ क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। ये गो अच्छा सेंटर, ये आपका गो बैक एन का आंसर है राइट, 6 and 1। गो बैक एन का आंसर है ये, किसका आंसर है लिपिका? ओके सो चलो फर्स्ट लेट्स डिस्कस गो बैक एन। चलो आप भी आंसर कर लो संरीटा, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, अब बताओ मुझे मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स गो बैक एन में कितने होते हैं, ये कैसे पता लगता है? n+1 से, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, n क्या है आपका यहाँ पे? n आपका होता है बेसिकली विंडो साइज, राइट, n आपकी विंडो साइज हो गई। ठीक है, सो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर आपके कितने हो गए? अगर आपका 5 बिट है सीक्वेंस नंबर का, सो मैक्सिमम हो गया 2⁵5, राइट। 2⁵5 is 32, 32 minus 1 equal to n. So go back n के केस में जो आपकी विंडो हुई सेंडर की वो हो गई 31 की। So go back n में 31 आपकी सेंडर विंडो साइज है और 1 आपकी रिसीवर विंडो साइज है। इसमें कोई डाउट? हम रिपीट कर दूंगा। देखो ये फॉर्मूला तो आपको बताया था ना कि मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स गो बैक n के केस में n+1 होने चाहिए। यस मैम। और n क्या है आपका? n क्या है आपका? विंडो साइज। ठीक है, सो अगर आपको मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स कैसे निकालोगे? अगर 5 बिट दे रखा है, अगर हमारे पास 3 बिट्स होती हैं, इफ वी हैव 3 बिट्स, तो 3 बिट्स से हम कितने सीक्वेंस नंबर्स निकाल सकते हैं? 2⁵3 8 निकाल सकते हैं। यस मैम। यस, तो यहाँ पे भी वही किया है। मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स कितने पॉसिबल है? आपके पास 5 बिट है, 5 बिट है तो मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स पॉसिबल होगा 2⁵5। और ये हमें पता है कि मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स कितने हो सकते हैं? n+1 के इक्वल हो सकता है हमारा।
ठीक है। Yes, ma'am. तो इसलिए सेंटर विंडो साइज 31 एंड रिसीवर विंडो साइज 1। सेलेक्टिव रिपीट का केस अगर देखो आप, 31. सो सेलेक्टिव रिपीट में क्या होगा, सेलेक्टिव रिपीट का क्या फॉर्मूला बताया था, 2 2 raised to the power n minus 1 2 to the power n minus minus 1. 1, ठीक है, यही था। Yes, ma'am. तो देन दिस इज व्हाट, ये विंडो साइज का फॉर्मूला है आपका, विंडो साइज इज इक्वल टू, सो यहाँ पे सिंपली विंडो साइज का आपका क्या हो गया, 5 minus 1 दैट इज 2 raised to power 4, सो दिस इज 16, राइट। सो Yes. सिलेक्टिव रिपीट में सेंटर विंडो साइज भी 16 हो जाएगी और रिसीवर विंडो साइज भी 16 हो जाएगी। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। सो अगर आपको बिट्स दे रखी है, सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दी सेंडर विंडो साइज एंड रिसीवर विंडो साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट इज maximum sender window size in selective repeat ARQ is 4. So you have to tell कि number of sequence bits कितनी होंगी। नंबर ऑफ सीक्वेंस बिट्स कितनी होंगी? सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। करेक्ट एवरीबॉडी, करेक्ट, ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, दैट इज विंडो साइज इज इक्वल टू 2 raised to power n minus 1। यहाँ पे विंडो साइज कितनी दी हुई है आपको, 4, राइट, and then it is 2 raised to power n minus 1. So now we can write it as 2 raised to power 2, it equal to 2 raised to power n minus 1. And when we have base as same, we can equalize the power. So it is 2 equal to n minus 1. That will give you what? That will give you n is equal to 3. So this is the maximum number of sequence bits. ठीक है? Then the next question is, बफर साइज जो है आपका, that is given as 3 bits, और सीक्वेंस नंबर्स कितने हो गए आपके, 8। 8 कैसे, 2 raised to power 3. So now they are asking कि stop and wait ARQ, go back n and selective repeat में maximum sender window का साइज क्या होगा।
कॉमा कर करके अपने आंसर्स लिख देना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगी। पहला आंसर आपका सी कुछ नहीं है, बफर आपको दे रखा है, बफर बिट्स, बफर साइज, अभी मैंने आपको क्वेश्चन, आपको जो टेबल में बफर बताया था, आपको बफर की वैल्यू n होती है, ठीक है। सो बफर बेसिकली आपके क्या होता है, बफर आपका होता है कि आपकी विंडो साइज और उसमें कितने, आपको कितना सेंटर विंडो साइज क्या है और रिसीवर विंडो साइज आपका बफर डिनोट करता है, ठीक है। आपको सीक्वेंस नंबर दे रखा है, आपको बफर साइज बेसिकली आपको दे रखा है, सो यू हैव टू जस्ट फाइंड कि आपकी विंडो साइजेस क्या होंगी। चलो बाकी को करने दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सी स्टॉप एंड वेट तो सिंपल है एवरीवन, स्टॉप एंड वेट में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। स्टॉप एंड वेट में तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, एक ही होगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम साइज हमेशा स्टॉप एंड वेट में 1 ही रहती है। मेन बात है गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट की। गो बैक एंड में दे आर सेइंग यू हैव 8 सीक्वेंस नंबर्स, राइट। 8 सीक्वेंस नंबर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि आपको मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स शुड बी इक्वल टू n+1, ये बताया था अभी फॉर्मूला, जस्ट प्रीवियसली मैंने आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, यही चीज कि मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर्स इज इक्वल टू n+1 और n आपका होता है विंडो साइज, करेक्ट। तो ये आपका हो गया n इज इक्वल टू 7, सो गो बैक n में आपकी वैल्यू हो गई 7। सेलेक्टिव रिपीट में क्या फॉर्मूला बताया था कि विंडो साइज इज इक्वल टू 2 raised to power n-1, सो इट इज विंडो साइज आपको निकालना है 2 raised to power n, 2 raised to power n, n कितना है आपका 3, सो 2 raised to power 3 - 1 दैट इज 2 raised to power 2, सो विंडो साइज आपके सेलेक्टिव रिपीट के केस में हो जाएगा 4 नॉट 7। चीज क्लियर हुई? Yes. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, No, ma'am. कोई भी डाउट है अगर। Clear, ma'am. क्लियर है? Yeah. ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, ये आपका गेट का क्वेश्चन है, सो लेट्स सी होता है कि नहीं। कुछ है नहीं वैसे, बस फॉर्मूले हैं। सो दे आर सेइंग कि कंसीडर
दे आर सेइंग दैट आपका एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक है जिसकी बैंडविड्थ दी हुई है आपको, एंड दे आर सेइंग कि प्रोपगेशन टाइम है आपका 150 मिली सेकेंड का। सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है आपका, ठीक है। फ्रेम साइज आपको दिया हुआ है कितना है। दे आर आस्किंग कि मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी टू अचीव 100% ऑफ यूटिलाइजेशन, एंड आपके ऑप्शंस हैं A is 2, B is 4, C is 6 and D is 8। करो और मुझको बताओ फिर क्या आ रहा है। सिर्फ फॉर्मूले जो आपने अभी तक पढ़े हैं उनको अप्लाई करना है इसमें। और फॉर्मूले भी आपके ट्रांसमिशन टाइम और इन सब वाले हैं, एफिशिएंसी रिलेटेड जो फॉर्मूले आपके। मैम मैम फ्रेम साइज बाय beats getting something सॉरी, frame size by beats per second, then I can derive propagation time. प्रोपगेशन टाइम क्यों ड्राइव करना है आपको? प्रोपगेशन टाइम तो दिया हुआ है ऑलरेडी। ट्रांसमिशन टाइम ड्राइव करना है ना आपको। चलो ओके, इधर देखो, आई टेल यू बाकी ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट वाला आप अपने आप मतलब जो भी आगे आप क्वेश्चन ट्राई करना, सो उसको ट्राई करना। देखो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग
मेन पॉइंट जो आपको यहाँ पे पता ध्यान रखने हैं वो हैं कि फर्स्ट है कि आपका बैंडविड्थ आपको दी हुई है, दिस इज योर बैंडविड्थ, दैट इज 128 into 10 to the power 3 bits per second, so ये हो गया आपकी बैंडविड्थ, फर्स्ट पॉइंट। फिर आपका प्रोपगेशन टाइम आपको दिया है 150 मिली सेकेंड्स का। फिर आपका प्रोटोकॉल मेथड जो यूज हो रहा है वो है सेलेक्टिव रिपीट, और फ्रेम साइज है आपका 1 KB, और एफिशिएंसी ये आपकी 100% यूटिलाइजेशन का मतलब पता है ना आपको, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली योर एफिशिएंसी, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप फाइंड इज योर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू या इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर आप ऐसे लिखो, अगर परसेंट है, सो विंडो साइज अपॉन 1 plus 2a, राइट। 100% एफिशिएंसी का मतलब ये हो सकता है कि एफिशिएंसी 1 है हमारी, कह सकते हैं हम 100% को 1 लिख सकते हैं, अगर आप परसेंटेज को चेंज करो तो 1 आएगी, यस मैम, ठीक है। सो आई कैन राइट इट एज 1 is greater than equal to window size upon 1 plus 2a, ठीक है। सो आई कैन टेक दिस 1 plus 2a over here, so 1 plus 2a is greater than equal to window size। अब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, दिस वैल्यू ऑफ a, so let's find this value of a over here, ठीक है। सो a की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, a is basically what, a is tp अपॉन tt, यही होता है ना, प्रोपगेशन टाइम अपॉन, ठीक है। सो अब प्रोपगेशन टाइम हमें कितना दिया हुआ है, प्रोपगेशन टाइम इज गिवन टू अस एज 150 मिली सेकेंड, सो ठीक है, नो प्रॉब्लम। और ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, डाटा साइज बैंडविड्थ अपॉन ना फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ, राइट। सो ट्रांसमिशन टाइम हो गया फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ, फ्रेम साइज कितना है 1 KB अपॉन बैंडविड्थ, बैंडविड्थ कितनी है 128 into 10 to the power 3, ठीक है। सो 1 KB बेसिकली 10 to the power 3 हो गया, सो 10 to the power 3 से 10 to the power 3 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 upon 128। सो TP upon TT will become your, TP की वैल्यू कितनी है 150 मिली सेकेंड, दैट इज 150 into 10 to the power -3, ठीक है। So now your A will become 150 into 10 to the power -3 upon 1 upon 128, because आपका ट्रांसमिशन टाइम आया 1 upon 128, ठीक है। सो आप जब इसको अगर आप पूरे को सॉल्व, वहां पे वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर गेट में अवेलेबल होता है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो या तो वो आपको वैल्यू दे देंगे A की डायरेक्टली, या फिर हो सकता है वो आपको इजी कैलकुलेशन दें, बट जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे सो कोई जो वैल्यू आएगी आपका जो टोटल जो इसकी वैल्यू है वो आएगी 5.68, ठीक है। इसको आप अभी जब कैलकुलेट करोगे सो यू कैन फाइंड इट, बट सिंस आप नेट में आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, हो सकता है इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना दे, बट स्टिल यू शुड नो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया विद चेंज, अगर आपकी कोई जो वैल्यूज हैं वो चेंज हैं, सो हाउ यू विल डू इट। सो ये हो गया आपका 5.68 वैल्यू हो गई इसकी। अब 5.68 इज व्हाट इज ग्रेटर देन इक्वल टू विंडो साइज, मतलब कि विंडो साइज जो है वो इस वैल्यू से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। सो विंडो साइज आपका क्या हो जाएगा, विंडो साइज आपका हो जाएगा 5, बिकॉज विंडो साइज इज लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि विंडो साइज इज लेस देन इक्वल टू 5.68, यही तो मतलब हुआ इसका, यस और नो, यस मैम, है ना। सो विंडो साइज इज लेस देन इक्वल टू 5.68 मींस विंडो साइज इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमें एक चीज और दी हुई है, दे हैव मेंशन्ड अस दैट इट इज व्हाट प्रोटोकॉल, इट इज सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल, एंड इन सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल अगर आपको वो टेबल याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू विंडो साइज प्लस रिसीवर साइज, दैट इज n+n। सो सीक्वेंस नंबर्स हो गए 5 + 5 दैट इज 10। अब 10 के लिए कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 10 के लिए आपको कम से कम कितनी बिट्स की जरूरत पड़ेगी,
4 बिट्स की। कैसे? या तो आप डायरेक्टली 2 रेज टू पावर 3 करके देखो, सो 2 रेज टू पावर 3 की वैल्यू होती है 8 और 2 रेज टू पावर 4 की वैल्यू होती है 16। सो 10 अगर है आपके पास सीक्वेंस नंबर्स, तो 10 आपके सीक्वेंस नंबर्स 4 बिट में ही अकोमोडेट हो सकते हैं। Window size 6. हाँ, 6 because greater than half, ma'am. 6 Yes, ma'am. Approximation 6. विंडो साइज आपकी छोटी है ना 5.68 से। अगर 5.68 से छोटी है विंडो साइज तो फिर 5 ही तो लोगे। Okay. आप क्या हाफ हाफ क्या बोल रहे हो आप वो वाला चीज तो नहीं बोल रहे 2n-1 वाली? No, ma'am. If 5.50 से नीचे हो तो 5, मैम ऊपर हो तो 6, ये बोल दीजिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। यहाँ पे हम फ्लोर और सीलिंग वाला पॉइंट नहीं ले रहे ना, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो अगर विंडो साइज 5.68 से छोटी है तो क्या वैल्यू सकती है? 5 हो सकती है। हमें बड़ा नहीं लेना ना। अगर ये होता दैट विंडो साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5.68 तो आप 6 ले सकते थे। Okay, ma'am. ठीक है। Yes. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, गेट में आपके पास कैलकुलेटर हो सकता है, दैट्स व्हाई दे माइट हैव गिवन यू दिस कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन। बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, सो व्हाट इज द अप्रोच दैट यू विल कीप। सो अप्रोच आपको ये ध्यान में पता होना चाहिए। सो इस वाली चीज में आप देखो, सो दे हैव यूज्ड एवरी एंड, मतलब जितना फॉर्मूला पॉसिबल है सारे फॉर्मूले यूज कर लिए उन्होंने। ए का फॉर्मूला भी यूज कर लिया, एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी का भी यूज कर लिया, सिलेक्टिव रिपीट का प्रोसीजर भी यूज कर लिया, बिट्स का पॉइंट भी आ गया, सब कुछ आ गया एक क्वेश्चन में। सो गेट में बेसिकली दे कैन गिव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे वो आपको पूरा एक ही क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट देख ले कि आपको आता है कि नहीं। नेट में भी दे हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली इतनी टफ कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशन नहीं होगी, तो ऐसी कुछ क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हम इसको कैलकुलेट करें तो 9.2 कुछ समथिंग आ रहा है मैम। 150, तो आपका ये होगा 150 इंटू 128 इंटू 10 टू द पावर -3, यही होगा ना। Yes, ma'am. सो मल्टीप्लाई करके देखो यार, 150 इंटू 128। सो आपको उसको मल्टीप्लाई करके आपको फिर यहाँ वैल्यू भी तो सब्स्टिट्यूट करनी है। कर ली 19,200 में कि पूरी 1 + 2 है? नो मैम 150 इंटू नहीं नहीं, आपको ये मैं तो पूरी 5.68 इस पूरी की वैल्यू बताई है ना 1 + 2 की। मैम 15 इंटू 128 की चलो रुको करके देखते हैं, रुको रुको वेट। 19,200 128 इंटू 150 अगर हम करेंगे सो इट विल बी 200। ये हुआ Yes, इंटू 10 टू द पावर -3 है, मतलब डिवाइड बाय 1000 है, सो 19.2 हो गया। yes, ma'am. सो 1 + 2 इंटू 19.2, सो 1 + 19.2 कितना हो गया आपका? 19.2 बेसिकली आपका हुआ 39.4 मैम, 39.4। 38.4 हुआ ना। हाँ। ये हो गया 39.4। अच्छा ओके। सो चलो मैं देखती हूँ इसे कैसे, यहाँ पे मेरा कैसे लिखा हुआ है। I'll see to it, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। 5.68 कैसे आया? होगा तो यही 150 into 128 upon 1 kb, that is 10 to the power 3. So चलो I'll see to it, मैं बताती हूँ आपको देख के। एक मिनट रुको। Mm, 1 plus TP upon TT. So they are saying 1 plus. इनके अकॉर्डिंग
यहाँ पे जो 1 + 2a की वैल्यू आ रही है वो यही आ रही है 5.687। कैसे आ रही है ये देखनी है। 150 milliseconds is 150 into 10 to the power -3. 150 TT is transmission delay, so TT is basically फ्रेम अपॉन बैंडविड्थ ही होता है ना फॉर्मूला, उल्टा तो नहीं लगा दिया फॉर्मूला। नो मैम। फ्रेम बैंडविड्थ सो एक मिनट, TT is डेटा साइज अपॉन बैंडविड्थ, राइट। तो डेटा साइज है आपका 1 KB, 1 KB अपॉन इस बैंडविड्थ इज 128 into 10 to the power 3, which 1 KB is 1 into 8 तो नहीं करना था यहाँ पे। मिनट, मैम अगर into 8 करते हैं तो 5.8 आती है। आ जाएगा 5.8। यस मैम। हाँ, सो मे बी यहाँ पे into 8 करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ये बाइट में है ना। यस मैम। सो इसको बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट इज व्हाई मे बी हो सकता है। So 150 into 128 divided by 8, that is 2400, so that is 2.4 है ना। फिर आपका हुआ अगर 2.4, so this is 2.4 into 2, हाँ अब आ जाएगा, राइट। so क्या हो रहा है यहाँ पे, I missed that point, right। so यहाँ पे 1 किलो 1 KB है ना, so आपको, और ये आपका बिट्स पर सेकंड में था, राइट। सो बिट्स एंड बिट्स को कैंसिल करना होगा, तो इसको आपको पहले बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इट विल बी 1 into 8 upon 128, सो दिस विल बिकम दिस। सो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसे 8 से डिवाइड करोगे, सो जब आप इसे 8 से डिवाइड करोगे, सो इट विल कम आउट टू बी 2.4, ठीक है। सो 2 into, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.4 से, 2 into 2.4 will give you 4.8, that will be equal to 5.8 something, right। so यहाँ पे exactly 5.68 नहीं होगा तो 5.8 आ जाएगा। अब ठीक है। यस मैम। सो विंडो साइज आपकी 5.8 से लेस हो गई, एंड 5.8 से लेस होते ही वो 5 फिर वही चीज होगी, ठीक है। ठीक है एवरीवन, अब ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. सो अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये स्लाइड्स आज दे दूंगी, आपका फ्लो कंट्रोल पूरा हो गया। एक बार लेट अस जस्ट चेक द सिलेबस वंस। So, अब अगर सिलेबस की बात करें आपके, आपका ये वाली चीज पूरी, आपकी ये वाली यूनिट तो पूरी हो गई है ना, बस इसमें ये आपके एरर हैंडलिंग और ये सब भी हो गया। आपका ये वाली बुलेट भी पूरी हो गई, ये वाली चीज भी पूरी हो गई। अब आपकी है फंक्शंस एंड ओएसआई, तो फ्रेमिंग हो गया आपका, एरर डिटेक्शन करेक्शन हो गया, फ्लो एंड एरर कंट्रोल हो गया, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल भी हो गया। अब आपका यहाँ से स्टार्ट होगा कल, दैट इज मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल मेथड्स आपके CSMA CD, CSMA CA, रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग, FDMA CDMA जितने भी हैं ये सारे। फिर उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे से आपका एड्रेसिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। आई ट्राई कि उससे पहले ये चीज खत्म हो जाए, बट अब ये है ना कि इन क्वेश्चंस को उड़ा भी नहीं सकते ऐसे के टॉपिक्स को, ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ा दिया बस हवा में। सो वील डू इट, अच्छे से करेंगे अगर कर रहे हैं तो। सो इसलिए फिर आपका जो पूरा ही है ये पूरा मल्टीपल एक्सेस आपका शुरू होगा। सो आई ट्राई कि ज्यादा लंबा ना खींचू मैं टॉपिक्स को, ठीक है। हाँ जी। HDL, हाँ HDL से मैम मल्टीपल एक्सेस से पहले
क्या बोल रहे हो? HDLC मैम। हाँ हाँ, HDLC भी, मतलब ये सारा ही आपका, सारा ही पूरा इसी में आ जाएगा ना। अब ये मुझे देखना है कि आपकी बुक में HDLC कहाँ पे है, मतलब मल्टीपल एक्सेस के बाद है, पहले है, ये चीज मैं आपको बुक के मैंने जितना भी आपको सिलेबस जो कवर किया है वो बुक के अकॉर्डिंग ही किया है। सो बुक में आपका पहले आपका जो एरर कंट्रोल है, ये फ्रेमिंग आपकी बाद में थी, एरर कंट्रोल आपकी पहले है। दैट इज वाई मैंने बुक के अकॉर्डिंग ही पूरा पढ़ाया है। ठीक है, सो बुक के अकॉर्डिंग ही जो भी आपका सीरियल होगा, ऑर्डर होगा, वही चलेगा। ठीक है, एनी डाउट? नो मैम। So, आज आपकी YouTube पे प्रोपोजिशन लॉजिक की क्लास है, मतलब न्यूमेरिकल्स है, तो आ जाया करो YouTube पे भी, बिकॉज क्लास में पढ़ाते वक्त कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रह जाते हैं, तो आई ट्राई कि मैं YouTube पे वो सारे आपके जो टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं नए टाइप के, वो कवर कर लूँ। तो मैम आपको भी, हाँ जी, मैम प्लीज रिपीट वंस इक्विवेलेंस क्लास concept. इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट। And ma'am, and one thing, in POSIT we get LUB and least upper bound and एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। greatest lower bound by the unique digit. And lattice we get least upper bound and greatest lower bound by LCM and GCD. है ना? हाँ, सी इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है आपकी बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इक्विवेलेंस क्लास आपको फाइंड करनी है, सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं, दे आर कि सबसे पहले तो अगर आपके पास सपोज दिस इज अ सेट, दैट इज ए इज अ सेट विद 1 2 3 4 एंड 5, आपके ए के 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, so now you have a relation, so now you have to check that that relation is equivalent. So what we have to do, suppose हमने कोई भी एक relation लिख लिया, ये वही एग्जांपल है जो मैंने कल लिया था। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी एक रिलेशन लिख लो, वो आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होना चाहिए। सो नाउ वी हैव ये आपका रिलेशन है। ठीक है, सपोज दिस इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है? इसमें आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, सो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है 1 2 2 1 3 5 5 3, और ट्रांजिटिव भी है। कैसे? 1 1 1 2, सो 1 2 आपका ट्रांजिटिव होगा, आप चेक करना इसे, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन आएगा ये। अब इक्विवेलेंस क्या कहता है? इक्विवेलेंस क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं? हर एलिमेंट की सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब की अपनी इक्विवेलेंट क्लास होती है। सो व्हाट विल कम इज, सबसे पहले हम इक्विवेलेंट क्लास निकालेंगे 1 की। इक्विवेलेंट क्लास बेसिकली कैसे निकलती है? इक्विवेलेंट क्लास इज बेसिकली, अगर मैं कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ x, सो इक्विवेलेंट क्लास इज y is that element y, that is first y should belong to the set A. सबसे पहले तो y जो है वो A को belong करना चाहिए, and second is that x comma y must belong to R. मतलब कि x, जो ये x है आपका, ये और जो आप यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हो, उनका एक पेयर होना चाहिए R में। सो अगर 1 मेरा एक, अगर मैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रही हूँ, इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, दिस मींस दैट I have to check all the elements that are having relationship with 1. So एक तो हो गया 1 itself, एक एलिमेंट तो हो गया 1 itself. Second आपका हुआ 2, because 2 is the another element that is having relationship with 1. So 1 की इक्विवेलेंस क्लास में दो एलिमेंट्स हैं, 1 and 2. फिर नेक्स्ट वी विल चेक फॉर एलिमेंट 2। अगर एलिमेंट 2 की बात करो, एक तो 2 का अपने साथ का रिलेशन है 2, एंड नेक्स्ट 2 इज हैविंग रिलेशन विद 1. So 2 and 1. Next we will check for 3. अगर मैं 3 की बात करती हूँ, so 3 is having a relation with itself, that is 3, and 3 is having a relation with 5. So 5. So 3 की equivalence class में 5 आ गया। 4 की equivalence class में क्या element आएगा? 4 is having a relation only with itself. So 4 की relation class में आ गया 4, equivalence class में आ गया 4. And let's talk about now 5. So अगर आप 5 का देखो, so 5 is having a relation with itself, so एक 5 हो गया, and 5 is having a relation with 3, so 3 हो गया। So ये आपकी हो गई equivalence classes। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब you have to find the partitions. So partitions basically किस बेसिस पे फाइंड करते हो? Partitions are basically made in the form
कि जिन भी एलिमेंट्स की एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास, मतलब जो एलिमेंट्स इक्विवेलेंस क्लासेस में अगर वो सेम है, सो दे विल बी पेयर्ड अंडर वन पार्टीशन. So, अब अगर मुझे पार्टीशन 1 फाइंड करना है, so I can see that 1 is having the elements as 1 and 2 in its equivalence class, and 2 is having the same elements 1 and 2 as the elements in its equivalence class. So this means partition 1 में आपका 1 और 2 आ जाएंगे, that is ये वाला और ये वाला. फिर आपका नेक्स्ट पार्टीशन बना, यू विल चेक फॉर 3. अब 3 और 5 आपका एक सेट है जिसमें आपका 3 की इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट्स हैं, एंड सिमिलरली 5 की इक्विवेलेंस क्लास में भी सेम एलिमेंट्स हैं. सो नेक्स्ट जो पार्टीशन बना आपका वो हो जाएगा 3 और 5 का. और फिर आपका पार्टीशन 3 बना, दैट इज 4. अब 4 इज लेफ्ट अलोन, सो 4 की अकेले की अपनी एक पार्टीशन बन जाएगी. सो इस इक्विवेलेंस क्लास में यू कैन से दैट आई हैव 3 पार्टीशंस. ठीक है, क्लियर मैम. सो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास. ठीक है, सो आज के लिए आई कीप इट हियर ओनली. जो भी आपको इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट आप मुझे पूछ लेना, एंड बाकी YouTube की क्लास अटेंड कर लेना शाम को, उसमें आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, नए क्वेश्चंस आपको सीखने को ही मिल रहे हैं. इट इज अ गुड थिंग. ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम. बाय, टेक केयर.